السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی اکیڈمی۔ تو فرینڈس، آج ہم جینگو ٹیوٹوریل سیریز کے اندر ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے HTML ٹیمپلیٹ کو رینڈر کروا سکتے ہیں اپنے ویوز کے اندر۔ آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے اپنے پریویس ویڈیوز کے اندر HTTP رسپانس کو یوز کیا تھا۔ HTTP رسپانس کیا کرتا تھا کہ ہمیں کوئی بھی میسیج ڈسپلے کراتا تھا جب ہم کسی URL کو ہٹ کرتے تھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم کیا کریں گے کہ ہم کسی بھی URL کو ہٹ کریں گے تو ہمارے پاس ایک HTML فائل کے اندر جو بھی کوڈ ہوگا وہ ایگزیکیوٹ ہوگا۔ تو آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے HTML ٹیمپلیٹ کو رینڈر کروا سکتے ہیں۔ تو آئیے بغیر ٹائم ویسٹ کیے ہوئے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو فرینڈس، ہم آ چکے ہیں اپنے VS کوڈ میں۔ تو ہم وہی پروجیکٹ کو یوز کریں گے جو ہم اپنی پہلی ویڈیو کے اندر کریٹ کیا تھا۔ ہمارے پاس بیسیکلی پروجیکٹ کا نیم ہے فرسٹ پروجیکٹ، اور اسی طریقے سے ہم نے یہاں پر اپنے اس پروجیکٹ کے اندر ایک ایپ کریٹ کی تھی ایپ 1 کے نیم سے۔ ہم یہاں پر اسی ایپ کو یوز کرنے والے۔ تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر urls.py کے نیم سے جو ہمارے پاس فائل ہے وہ اوپن ہوئی ہوئی ہے۔ ہم نے اپنی پریویس ویڈیو کے اندر بیسیکلی ڈائنامک URLs کا کنسیپٹ دیکھا تھا، تو اسی وجہ سے ہمارے پاس یہاں پر یہ جو جتنے بھی URLs ہیں وہ اس ویڈیو کے جو اندر جو ہم نے کور کیے تھے وہ تمام ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس یہاں پر ویوز ہیں۔ اب ہم یہاں پر کیا کریں گے؟ اب ہم یہاں پر سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ ہم سب سے پہلے ایک ٹیمپلیٹس کی نیو فولڈر کریٹ کریں گے۔ ہم ٹیمپلیٹ کا نیو فولڈر کریٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر جو بھی ہماری HTML فائل ہوں گی ہم اس کے اندر اسٹور کریں گے۔ تو میرے پاس یہاں پر فرسٹ چوائس تو یہ کہ میں یہاں پر اپنے اس VS کوڈ کے اندر ہی ایک نیو ٹیمپلیٹ کا فولڈر کریٹ کر لوں، لیکن اس کے اندر آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں تھوڑا ڈیفیکلٹیز ہوگی۔ تو اسی وجہ سے ہم کیا کریں گے، ہم ڈائریکٹ اس پروجیکٹ جہاں پر ہمارے جس ڈرائیو کے اندر اسٹور ہے ہم سمپل اس ڈرائیو کے اندر موو کرتے ہیں۔ تو فرینڈس، ہمارے پاس بیسیکلی یہاں پر ہمارا پروجیکٹ G ڈائریکٹری کے اندر جینگو ٹیوٹوریل کے نام سے ایک فولڈر ہے، اس کے اندر ہمارا یہ پروجیکٹ ہم نے سیو کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہاں پر اپنے اس پروجیکٹ کو کر لیتے ہیں اوپن۔ تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر یہ بیس ڈائریکٹری ہے ہمارے اس پروجیکٹ کی۔ اب ہم یہاں پر بیس ڈائریکٹری کے اندر ایک نیو فولڈر کریٹ کریں گے ٹیمپلیٹس کے نیم سے۔ تو اب ہم یہاں پر کیا کریں گے، سب سے پہلے ایک نیو فولڈر کریٹ کر لیتے ہیں۔ ہم یہاں پر اسے نیم دیتے ہیں ٹیمپلیٹس۔ تو اس طریقے سے ہم نے یہاں پر ٹیمپلیٹس کے نیم سے ایک نیو فولڈر کریٹ کر لیا ہے۔ اب ہم یہاں پر کیا کریں گے، اب ہم یہاں پر اس کے اندر کچھ HTML فائل انکلوڈ کریں گے۔ اب ہمیں یہاں پر HTML فائل تو ہم سمپل اپنے VS کوڈ میں بھی جا کر انکلوڈ کر سکتے ہیں، بس بیسیکلی میں نے آپ کو یہاں پر اس ڈائریکٹری کے اندر لے کر جا کر اور فولڈر کریٹ کرنے کا میرا پرپز یہ تھا کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہم اپنے اس فولڈر کو کہاں کریٹ کریں گے۔ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر یہ ہمارے پروجیکٹ کی بیس ڈائریکٹری ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ manage.py فائل بھی موجود ہے، اسی طریقے سے ہمارے ڈیٹا بیس کی فائل بھی موجود ہے، اور اسی طریقے سے فرسٹ پروجیکٹ جو ہمارے یہاں پر پروجیکٹ ہے اس کا فولڈر بھی موجود ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے پاس یہاں پر ایپ 1 کا فولڈر بھی موجود ہے۔ اسی ڈائریکٹری کے اندر ہم نے یہاں پر ٹیمپلیٹس کے نیم سے ایک فولڈر کریٹ کر لیا ہے۔ اب ہم یہاں پر کیا کریں گے، سب سے پہلے جو ہمارے ٹیمپلیٹس کے نیم سے فولڈر ہے اس کے اندر ایک نیو HTML فائل کریٹ کر لیتے ہیں۔ اب ہم یہاں پر کیا دیتے ہیں base.html۔ ہم یہاں پر سمپل اسے کہیں گے base.html، اور اس کے بعد اب ہم یہاں پر اس کے اندر سب سے پہلے تو HTML کی بوائلر پلیٹ انکلوڈ کر لیتے ہیں۔ تو اب ہم یہاں پر سمپل HTML کی بوائلر پلیٹ بھی انکلوڈ کر چکے ہیں۔ اب ہم یہاں پر اس کے اندر سب سے پہلے میسیج ڈسپلے کروا دیتے ہیں دس از ہوم پیج۔ ہم نے یہاں پر سمپل میسیج ڈسپلے کروا دیا ہے دس از ہوم پیج۔ اب ہم یہاں پر کیا کریں گے، ہمارے پاس ہماری اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم سمپل اس فائل کو ایز اے ویو کے اندر ہمارے پر رسپانس کے طور پہ ہم یہاں پر اس فائل کو ایگزیکیوٹ کروائیں گے، ویو کریں گے اپنے براؤزر کے اندر۔ تو اسے کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ اسٹیپس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہاں پر جائیں گے اپنے پروجیکٹ والی فائل کے اندر، اور اس کے اندر ہم سب سے پہلے جائیں گے settings.py کے اندر۔ settings.py فائل کے اندر ہمیں یہاں پر کیا کرنا پڑے گا، سب سے پہلے ہمیں یہاں پر اپنے اس ٹیمپلیٹس نام کے فولڈر کو، ہمارے پاس یہاں پر جو ہمارے پاس ٹیمپلیٹس کے نیم سے ایک ویریبل ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس بیسیکلی ایک لسٹ اسٹور ہوئی ہوئی ہے۔ اب ہم یہاں پر سب سے پہلے اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو DIRS کے نیم سے ہمارے پاس یہاں پر ایک جو ڈکشنری کے اندر ہمارے پاس ایک کی ہے DIRS۔ ہمارے پاس یہاں پر میں آپ کو سب سے پہلے سمجھاتا چلوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس یہاں پر ٹیمپلیٹس کے نیم سے ایک لسٹ ہے، لسٹ کے اندر ہمارے پاس ایک ڈکشنری ہے۔ ڈکشنری کے اندر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر کچھ ڈیٹا ہے بیک اینڈ کے نیم سے بھی ہے، اسی طریقے سے DIRS کے نیم سے ہمارے پاس یہاں پر ایک کی ہے۔ اب ہم یہاں پر کیا کریں گے، اس کی جو ویلیو ہے اس کے اندر ہم یہاں پر ایز اے لسٹ ہے ہمارے پاس، ہم یہاں پر اس کے اندر اپنی ٹیمپلیٹ کو رجسٹر کروائیں گے یا سمپل اسٹور کریں گے۔ تو اب ہم یہاں پر کیا کریں گے، سب سے پہلے تو ہم یہاں پر ڈبل کوٹس کا یوز کریں گے، سنگل کوٹ کا یوز کریں گے، اور اب ہم یہاں پر اس کے اندر سمپل ٹائپ کر دیں گے ٹیمپلیٹس۔ اس طریقے سے ہمارے پاس جو ہمارا ٹیمپلیٹ فولڈر ہے وہ اس ڈائریکٹری کے اندر جو انکلوڈ ہو چکا ہے۔ اگر ہم یہاں پر اس کے اندر اس ٹیمپلیٹس نام کے فولڈر کو انکلوڈ نہ کریں تو ہم HTML فائل کو یوز نہیں کر سکتے۔ تو اسی وجہ سے ہم نے یہاں پر سمپل جو ہمارے پاس DIRS کے نیم سے جو
हमारे पास एक की है डिक्शनरी की, उसकी वैल्यूज के अंदर हमारे पास एक लिस्ट हम पास कर सकते हैं। उसके अंदर हमने जो हमारे टेम्पलेट नेम का जो टेम्पलेट्स जो फोल्डर था उसे सिंपल हमने यहाँ पर रजिस्टर करवा दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर है कि होम यूआरएल। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल जो हमारा होम पेज है उसके अंदर कोई यूआरएल सेट नहीं करते। मैं सबसे पहले तो आपको सर्वर रन करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर सबसे पहले टाइप कर देता हूँ python manish.py रन सर्वर, और इसके बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूँगा, जो हमारे पास यहाँ पर जो एड्रेस आएगा सबसे पहले मैं इसे करता हूँ कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर सिंपल अपने ब्राउज़र के अंदर जाके इसे पेस्ट करूँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हमारे इस होम पेज के ऊपर कुछ भी पेज रेंडर नहीं हो रहा या कुछ भी मैसेज डिस्प्ले नहीं हो रहा। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा होम पेज है इसके अंदर हमारे पास HTML टेम्पलेट रेंडर होकर आए। तो उसे किस तरीके से करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर जो हमने यहाँ पर सेट किया है होम स्लैश, इसकी जगह हम यहाँ पर इसे रख देंगे एम्प्टी। हम यहाँ पर सिंपल डबल कोट का यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पर इस URL के थ्रू हमने होम का जो फंक्शन है वो कॉल किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर कहा इस views.home, इसका मतलब ये कि होम व्यूज़ के अंदर जो हमारा होम फंक्शन है हमने सिंपल उसे कॉल किया है। तो आइए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा व्यूज़ के अंदर एक होम के नेम से फंक्शन क्रिएट है उसके अंदर थोड़ी चेंजिंग वगैरह कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर बेसिकली HTTP रिस्पॉन्स पास हो रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने इस ब्राउज़र के अंदर चेक कर लेता हूँ क्या हमारे पास यहाँ पर HTTP रिस्पॉन्स के अंदर कुछ मैसेज डिस्प्ले हो भी रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर HTTP रिस्पॉन्स के अंदर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, वेलकम टू होम पेज। अब हम यहाँ पर ये मैसेज ना डिस्प्ले करवा के अब हमारी जो HTML फाइल है हम उसे डिस्प्ले करवाएंगे, उसे रेंडर करवाएंगे। तो वो किस तरीके से करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले तो इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम django.shortcut import render। हमारे पास रेंडर ऑलरेडी इंपोर्ट हुआ है। हम यहाँ पर रेंडर के थ्रू ही अपने जो हमारी फाइल है उसे रेंडर करवाएंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर कहेंगे सबसे पहले तो इसे कर देते हैं कमेंट आउट करने के बाद अब हम यहाँ पर न्यू लाइन के अंदर करेंगे काम। हम यहाँ पर सबसे पहले टाइप कर देते हैं रिटर्न टाइप करने के बाद अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे रेंडर टाइप करने के बाद अब हमारे पास यहाँ पर जो रेंडर में फंक्शन है ये 2 पैरामीटर लेता है। बेसिकली जहाँ पर इसको 2 पैरामीटर देना लाजमी है, ये एक्चुअली लेता है 3 पैरामीटर। तीसरा पैरामीटर क्या होता है कि हम इसे एज अ कॉन्टेक्स्ट भी पास कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, बेसिकली एक डिक्शनरी होता ही है। हम अपनी डिक्शनरी की मदद से अपने जो हमारी टेम्पलेट है उसको डेटा पास कर सकते हैं। ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरीके से अपनी टेम्पलेट को डेटा पास कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर सिंपल इसके अंदर पास करेंगे रिक्वेस्ट पास करने के बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर पास करेंगे टेम्पलेट। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर जो हमारे टेम्पलेट फोल्डर है हमने यहाँ पर उसका जो टेम्पलेट्स तक हमारा यहाँ पर इसका हमने पास सेट किया हुआ है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो हमारी ये फाइल है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टेम्पलेट के बिल्कुल अंदर, टेम्पलेट फोल्डर के बिल्कुल अंदर हमारे पास एक base.html के नेम से फाइल है। अब हमें यहाँ पर इस फाइल को सेट करना है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर सिंगल कोट का यूज़ करेंगे और इसके बाद अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप करेंगे base.html। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर base.html फाइल रेंडर होगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर इसे रन करते हैं। रन करने का मतलब ये है कि हम अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर हमारी base.html फाइल रेंडर हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हम किस तरीके से अपनी HTML फाइल को रेंडर करवा सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब हमें यहाँ पर HTML फाइल को रेंडर करवाने का हमें एक एडवांटेज मिलता है। एडवांटेज ये होता है कि अब हमारे जो मेन पेज है या हमारे पास जो भी पेजेस होंगे इसके अंदर हम इजीली जो भी हम फ्रंट एंड में काम करना चाहें वो कर सकते हैं। किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसके अंदर स्टाइल टैग का यूज़ कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर स्टाइल टैग के अंदर जो हमारा H1 है, H1 का मैं कुछ कलरिंग वगैरह सेट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ H1 और इसके बाद मैं यहाँ पर H1 का कलर सेट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर कह देता हूँ सिंपल कलर और कलर में यहाँ पर इसका सेट करूँगा रेड। बेसिकली मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ पर इसके अंदर स्टाइलिंग दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर H1 का कलर सेट कर दिया है रेड। तो आइए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या हमारे H1 टैग के अंदर जो टेक्स्ट है उसका कलर रेड हो चुका है। तो जैसे मैंने यहाँ पर अपने पेज को रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेरा यहाँ पर टेक्स्ट था उसका कलर रेड हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम यहाँ पर जब हम अपनी इस फाइल को रेंडर करवाएंगे तो हमें यहाँ पर फ्रंट एंड के अंदर काम करने में थोड़े इजी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पर देखा कि हमने कितने इजीली अपनी जो हमारी फाइल थी HTML फाइल उसको रेंडर करवाया और किस तरीके से उसको स्टाइलिंग अप्लाई की। इससे क्या होगा, इससे हम अपने जो हमारा मेन पेज है, जो भी पेजेस हैं HTML के, उसे इंटरेक्टिव बना सकते हैं।
तो फ्रेंड्स लेकिन अब हम यहाँ पर अगर कोई अलग से CSS फाइल इंक्लूड करें, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर जो मेरा पेज है इसके अंदर मैं कुछ अपना टेक्स्ट या कोई भी कंटेंट रखूँ और इसकी CSS न्यू फाइल के अंदर करूँ, तो हमें इस तरीके से हम उसे CSS अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए हमें यहाँ पर स्टैटिक फाइल का कॉन्सेप्ट का आगे पढ़ना पड़ेगा। अभी हम यहाँ पर सिंपल क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर सिंपल जो हमारी फाइल के अंदर जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पर देखा कि हमने कितने इजीली अपने HTML फाइल को रेंडर करवा रहे हैं। HTML फाइल को रेंडर करवाने के लिए हमने यहाँ पर सिंपल यूज़ किया है रिटर्न रेंडर, और रेंडर वाला जो हमारे पास फंक्शन है उसके अंदर सबसे पहला पैरामीटर पास किया है रिक्वेस्ट और दूसरा पैरामीटर पास किया जो हमारी HTML फाइल का नेम है। आप इस बात का ख्याल कीजिएगा कि जो हमारे पास हमने जो settings.py के अंदर सेट किया है वो सिर्फ टेम्पलेट्स तक सेट किया है। उसके बाद हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास टेम्पलेट्स के अंदर न्यू फोल्डर हो, तो हमें यहाँ पर उस फोल्डर को भी ऐड करना पड़ेगा। आप कह सकते हैं कि उस फोल्डर का पाथ सेट करना पड़ेगा और उसके बाद हमें हमारी फाइल का पाथ सेट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आपने इस बात का ख्याल करना है कि जो हमने अपनी settings.py के अंदर पाथ सेट किया वो सिर्फ टेम्पलेट्स फोल्डर तक का पाथ सेट किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट पाथ होगा वो आपने यहाँ पर सिंपल इस रेंडर वाले फंक्शन के अंदर सेट करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर base.html होती कोई होम नाम के फोल्डर के अंदर, तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता होम स्लैश और base.html। इस तरीके से आपने यहाँ पर इसका पाथ सेट करना है। अभी हमारे पास सिंपल जो हमारी base.html है वो हमारे सिंपल टेम्पलेट फोल्डर के अंदर थी, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है base.html। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक अबाउट पेज भी बना लेते हैं। अब हम यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, टेम्पलेट्स वाले फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। हम यहाँ पर न्यू फाइल के अंदर क्या देते हैं about.html, और इसी तरीके से अब हम यहाँ पर इसके अंदर भी बॉयलर प्लेट इंक्लूड कर लेते हैं और h1 टैग के अंदर सिंपल क्या देते हैं दिस इज अबाउट पेज। अब हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता एडवांस की तरफ मूव करते जा रहे हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सिंपल जो हमारा अबाउट वाला फंक्शन है उसे ही यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर इससे सिंपल रिटर्न रेंडर करवा देंगे। हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इसे करते हैं कमेंट आउट और न्यू लाइन में हम सिंपल टाइप कर देते हैं रिटर्न रेंडर। और अब हम यहाँ पर से रेंडर में क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले रेंडर के अंदर पास करेंगे द पैरामीटर रिक्वेस्ट, और इसके बाद अब हम यहाँ पर जो हमारी about.html फाइल है हम यहाँ पर सिंपल उसे यहाँ पर रेंडर करवा लेते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है about.html। तो आइए सबसे पहले इसे सेव करते हैं। हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास urls.py के अंदर अबाउट का पाथ पहले से ही सेट है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो अपने पेज को करेंगे रिफ्रेश। पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे पास होम पेज डिस्प्ले हो रहा है। अब हम यहाँ पर जैसे ही स्लैश अबाउट टाइप करेंगे तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर अबाउट पेज रेंडर हो चुका है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपने HTML पेजेस को रेंडर करवा सकते हैं। आप यहाँ पर HTML पेजेस भी सुनेंगे मेरी ज़बान से इस कोर्स के अंदर और HTML टेम्पलेट भी सुनेंगे, दोनों सेम होता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस जेंगो के कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर रहे होंगे। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जाइए इस प्लेलिस्ट को लाजमी एक्सेस कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर हम जेंगो को स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हम यहाँ पर जेंगो को एज अ ग्राउंड लेवल से लेकर हम यहाँ पर इसे एडवांस लेवल तक सीखेंगे। तो इसी वजह से आपने यहाँ पर सिंपल इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।